Hello friends, welcome to our channel Enlighten Lives. So in this video we are going to discuss about the format of lesson plan. जो फर्स्ट पॉइंट हमारा लेसन प्लान के अंडर आता है वो होता है जनरल इन्फॉर्मेशन. इन जनरल इन्फॉर्मेशन वी राइट अबाउट क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, पीरियड एंड ड्यूरेशन. इसमें हम इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन से टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एंड देन डेट, पीरियड एंड ड्यूरेशन ऑफ आवर क्लास. Then second point is our general objective. The general objective is a statement that summarizes the central idea and purpose of our work. Means general objectives के अंदर वो point आते हैं that we want our students to have learned और what knowledge we want them to acquire at the end of this lesson. For example, हम उन्हें कोई topic पढ़ा रहे हैं and at the end of the lesson we want them to develop a wholesome personality, to develop desirable behavior, to develop critical thinking, to adjust in one's environment. These can be our general objectives. And ये जो general objectives होते हैं वो हमारे subject के according change होते रहते हैं. Then comes our teaching point. This component provides the reader or user of the lesson with a description of the main teaching point cues to be utilized for the teaching of skills throughout the lesson. Means teaching points के अंडर वो point हम लिखते हैं जो भी हम अपने topic में उन्हें पढ़ाने वाले हैं, students को पढ़ाने वाले हैं. For example, if we are teaching the topic noun, then our teaching points can be noun and its definition, types of noun, common noun, proper noun. Then next is our specific objective. They indicate the desirable knowledge, skills or attitudes to be gained. An instructional objective is the focal point of a lesson plan. Means जो हमारे specific objectives होते हैं उसके अंदर हम mainly 4 points को लिखते हैं. Remembering, understanding, applying and last one is skills. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारे वो चैप्टर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. एंड वेन एवर वी राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वी स्टार्ट विद दिस लाइन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, एंड देन वी फॉलो दिस पैटर्न. Then next is our teaching learning material. Teaching learning material would be the book that the teacher is using while delivering a lesson. Means इसमें हम simply उस book का नाम लिखते हैं जिससे हम students को पढ़ा रहे हैं. For example, if we are teaching them grammar, we can write the name of the book English Grammar and Composition by Wren and Martin or the name of their textbook. Then comes our teaching aids. A teaching aid is anything used by a teacher to help teach a lesson or make it more interesting to students. So apart from our books हम और भी aids का यूज़ कर सकते हैं, teaching aids का, अपने lesson को और effective और interesting बनाने के लिए ताकि स्टूडेंट्स को और अच्छे से समझ आए वो लेसन, वो टॉपिक. एंड इसके लिए हम फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ चार्ट पेपर और ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी और मॉडल्स. मीन्स वी कैन यूज़ एनीथिंग विच मेक्स अ लेसन इंटरेस्टिंग. हम ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं. देन कम्स आवर टीचिंग मैथड. अ टीचिंग मैथड comprises the principle and method used by teachers to enable student learning. For example, discussion method, storytelling method, inductive deductive method, etc. Means teaching methods के अंदर हमारे simply जो method हमने while delivering our lesson यूज़ किया होता है हम उसको लिखते हैं. Then comes our set induction. सो बेसिकली हम सेट इंडक्शन में अपने स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में. सो वी गिव देम अ हिंट और वी आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टीच एंड वी चेक देयर प्रीवियस नॉलेज. सो व्हेन वी राइट सेट इंडक्शन वी स्टार्ट विद दिस पॉइंट प्रीवियस नॉलेज एंड देन कम्स आवर इंट्रोडक्शन. इसमें हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम्स होते हैं, सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी. प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में हम वो क्वेश्चंस लिखते हैं जो हम स्टूडेंट्स को पूछते हैं वाइल चेकिंग देयर प्रीवियस नॉलेज. एंड स्टूडेंट एक्टिविटी में जो भी आंसर्स वो हमें देते हैं हम उसको लिखते हैं. Then comes our announcement of the topic. So in this point we announce the topic which we are going to teach. For example, today we are going to teach about nouns and its types. देन कम्स आर प्रेजेंटेशन. ये हमारे लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट होता है. इसमें हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम ये कॉलम्स बनाते हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी और टीचिंग एड एंड एवेलुएशन. इसमें हम टीचिंग पॉइंट्स लिखते हैं
देन हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, मीन्स जो भी ऑब्जेक्टिव या जो भी चीज़ हम अपने स्टूडेंट को उस टॉपिक से, उस टीचिंग पॉइंट से सिखाना चाहते हैं। देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर हमारे वो पॉइंट्स आते हैं जो हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं वाइल टीचिंग द टॉपिक। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इसमें हम स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को लिखते हैं, मीन्स जब हम उन्हें पढ़ा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेदर दे आर लिसनिंग टू अस, वेदर दे आर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, और वेदर दे आर राइटिंग इन देयर कॉपी एक्सेट्रा। एंड देन ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी और टीचिंग एड्स, इस कॉलम में हम मिनिएचर्स पेस्ट करते हैं उसका जो भी ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा होता है या जो भी टीचिंग एड हम यूज़ करते हैं। देन इवेल्युएशन में हम स्टूडेंट्स को वाइल टीचिंग द टॉपिक इन बिटवीन क्वेश्चंस पूछते रहते हैं उन्हें इवेल्युएट करने के लिए दैट वेदर दे आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। देन कम्स आवर रिकैपिचुलेशन. So in recapitulation we simply give brief idea of whatever we have taught in the class. For example, today we have studied about nouns and its type, common noun, proper noun, and then we ask question related to the topic. For example, we can ask questions like what are nouns, define common noun, etc. Then comes our homework. At the end we give homework related to the lesson delivered. अब हमने उन्हें नाउन पढ़ाया है, सो हम उन्हें नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं होमवर्क के लिए. देन कम्स अ सुपरवाइजर्स रिमार्क. ये हमारा लास्ट पॉइंट होता है लेसन प्लान का. हमें इसमें सिंपली कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ हेडिंग देनी होती है सुपरवाइजर्स रिमार्क, और जो भी हमारे सुपरवाइज़र या टीचर होते हैं वो हमारे लेसन प्लान को चेक करके उसे अप्रूव करते हैं एंड रिमार्क देते हैं. दैट्स ऑल. इतना ही लिखना होता है हमें लेसन प्लान में. इट्स वेरी इजी टू मेक अ लेसन प्लान. एक बार बस आपको फॉर्मेट समझने की ज़रूरत होती है. सो दैट्स ऑल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू आवर चैनल विच इज़ एनलाइटमेंट लाइट्स. थैंक यू.